So in the video, in the previous week, what were the topics that we covered in the video? Can you just slow आ रही है आवाज? अच्छा कम आ रही है मतलब? बाकियों के लिए is it the same issue or is it okay for others? Okay. ठीक है. Maybe Ikra, if you want to relog in again. ठीक है. So can you just list down the topics that were shared in the previous week? So one topic is pleiotropy, which is there on the screen. What were the other topics that was covered? If you can recall quickly. So we have finished with I think Mendelian genetics. Acha, I think this was also there. Sorry, incomplete and complete dominance, right? This, have we discussed this in our live class? No, na? I think the first live class was up till here, right? Test cross and back cross, right? है ना? ये यही था ना? हाँ, तो यही तक था ना. हमने मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, देन द लॉज वी डिड, राइट? एंड देन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस. उसके बाद आज सेकंड लाइव क्लास है, राइट? हाँ, ठीक है. तो ये नहीं हुआ है ना हमारा डिस्कशन एज इन रिविजन टाइप्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. So we have to begin from here revising, है ना? Okay. Okay, एक लास्ट बार कंफर्मेशन दे दो मुझे. Okay, ठीक है, ठीक है. So basically हमारा Mendelian genetics is over. Now we are on to neo-Mendelian genetics. Neo-Mendelian genetics means certain organisms. It can be in human beings, animals, or it can be plant species which do not follow Mendel's law. Okay. तो इसलिए हम उसको बोलेंगे न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स और डिविएशंस फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स ऐसा बुलाएंगे. ओके. So we saw that according to the classical Mendelian genetics, you had three laws, na? Law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Clear? ठीक है. तो उससे हमें पता है कि law of segregation से that gametes, the paternal and the maternal gametes before coming together they will separate. बाहर जाके छीको ना यार, कितने जोर से. Just give me a minute. Okay, so what we were discussing is that, so you had that law of segregation that before the gametes come together, the variation, random gametes coming together, they will separate. We write separately the gametes, and then in F1 generation we do the cross. ठीक है. लेकिन अभी हम देखेंगे, अब जितने भी examples we will see that in certain cases gametes separate नहीं होंगे. Gametes कुछ cases में gametes एक साथ ही रहेंगे. Okay, वो linkage का concept आएगा, वो next week हम करेंगे. Then law of dominance, another law which Mendel put forth, that F1 generation में हमेशा कौन सा allele express होगा? Dominant allele होगा, है ना? When it is an hybrid condition, मतलब अगर ये one capital T and one small t है,
तो हमेशा कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा फिनोटिपिकली, दिस कैपिटल वाला, राइट? सो दैट इज हाउ इन F1 सारे प्लांट्स क्या थे, मोनोहाइब्रिड में टॉल थे. But now we will see that certain organisms will not show this dominance. Okay, somewhere in between they will show the expression of the characters will be somewhere in between like that. They will not follow Mendel's law of dominance. तो सबसे पहले उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम डिविएशन फ्रॉम मेंडेलियन जेनेटिक्स करते हैं या न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स करते हैं, तो उसमें पहला एग्जाम्पल आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. बाय लुकिंग एट द नेम you come to know very instantly that यहाँ पे what is happening, the dominant character is not completely expressed. The dominant character is not completely expressed. So partial expression हम बोलेंगे, partial expression of the dominant allele. तो उस वजह से क्या हो जाएगा, the dominance will be incomplete. Okay, it is seen in these plants like snapdragon, 4 o'clock plant, जिसको हम मिराबिलिस जलापा भी बुलाते हैं. तो उसमें कैसा क्रॉस होता है, see, we will see that. Okay, something like this. We are revising it, so if you have any doubts, any minute detail that you want to ask, or anything which is not clear in detail, you can ask now. This is the time when you have to ask your questions, ask your doubts. Otherwise I am revising it in a nutshell. I'm not going into very deep because वो very deep वाला वो recorded videos में होता है. So time and again repeating myself. अगर आपको कुछ detailed question या कुछ doubt पूछना है, तो this is the time you have to ask when we are revising one by one topic. Okay, all of you are okay with this? So incomplete dominance में we take this example of a 4 o'clock plant. This is the parent. So one parent is homozygous dominant for red color flower, and another parent is homozygous recessive for white color flower. ऐसे बोलने लिखने आना चाहिए. These are the technical terms that you will be required to write on paper when you are doing crosses. ठीक है, अभी यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखा है. इन ब्रैकेट यू कैन राइट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर रेड फ्लावर, रेड कलर फ्लावर, एंड होमोजाइगस क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज बोथ द अलील्स आर सिमिलर, है ना. गैमीट्स हम एक ही बार ही लिखेंगे, कैपिटल आर लिखे एंड स्मॉल आर लिखे. अब जब ये दोनों आएंगे F1 जनरेशन के लिए, तो जीनोटाइप तो सेम ही दिखा रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, लेकिन when the scientists crossed and when they saw the phenotype of the flower was neither red completely, neither white, it was pink in color. तब पता चला okay, there is certain example, certain living organism which do not follow Mendel's law. Okay, so in this case pink color के flowers है, मतलब क्या, ये जो कैपिटल आर है इसने पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. दैट इज व्हाई जो रिसेसिव पार्ट है, थोड़ा बहुत व्हाइटिश पार्ट, दैट वाज सीन इन द फ्लावर. अंडरस्टैंडिंग. एंड जब देन द सेकंड राउंड, सेकंड जनरेशन सेल्फिंग किया गया कैपिटल आर स्मॉल आर का एंड कैपिटल आर स्मॉल आर का. सो इट इज लाइक सेम जैसे मोनोहाइब्रिड में हम करते हैं वैसे ही है. So you write the two gametes separately, capital R small r, capital R small r. So let's say the मेल का यहाँ पे लिख दिया और फीमेल का ऐसा लिख दिया. आपको ये रिप्रेजेंटेशन करना होगा. हाँ, in exam let's say if they ask you give a graphic representation of incomplete dominance, तो beginning from here ये पूरा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, obviously ड्राइंग नहीं करनी है, कलरिंग नहीं करनी है, फ्लावर बनाने की जरूरत नहीं है, but whatever is written in the format ये सब आपको लिखना है. ये let's say 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. ठीक है, 4 मार्क्स के लिए, छोटा वाला है तो 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है. बस ये इतना लिखोगे तो आराम से 3-4 मार्क्स मिल जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग. So F2 में you do this checkerboard method. Now you do the multiplication. This R into this R will give you 2 capital R. Then this R into, sorry यहाँ पे एक small r होना चाहिए, into this R will give you 1 capital R small r. Then this R into this R will give you 1 hybrid condition, and this small r into small r will give you this. ठीक है. जीनोटाइप इज सेम लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट फिनोटाइप इज डिफरेंट. फिनोटाइप में क्या है, ये रेड दिख रहा है, ये रेड नहीं दिख रहा है, ये क्या है, इट इज शोइंग पिंक कलर. सो समवेयर इन बिटवीन incomplete dominance, okay, which is not following Mendel law of dominance, and this is the white now. So phenotypic ratio will be what, 1, this is 2,
1, right? 1 red, 2 pink, 1 white. The phenotypic ratio is 1:2:1. Can anyone tell me what is the phenotypic ratio in monohybrid cross in Mendelian genetics in pea plant? Tell me. कोई मेरे को बोल सकता है फटाक से phenotypic ratio क्या है Mendelian genetics का pea plant में? Genotypic ratio is same. वहां पे भी 1:2:1 होता है usually in monohybrid cross. यहाँ पे भी because we are considering only one trait, that is the color of the flower, तो 1:2:1 ही है. ये एक है और hybrid heterozygous 2 है and this is 1. Phenotypic ratio, what was in the case of Physarum saccharum, come on, pea plant, जो हमने tall और dwarf plant का किया था monohybrid cross, 2 capital T into 2 small t. Come on, quickly. अगर ये भी टिप ऑफ द टंग पे नहीं आ रहा है देन व्हाट आर यू गाइस डूइंग? Am I audible? Can you hear me? हाँ तो मुझे बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या था इन द पी प्लांट वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस? We took this as parent, right? ये आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट. I'm waiting for the answer. Come on. No one? I have asked a question and I expect an answer. No one knows? What about others? तो आप लोगों ने वो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आप याद नहीं रख पाओगे तो देन इट इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट आगे. And that was something you did in 10th. What about others? Come on, Shreya, Shravani, Sarthak, Saima, Ruchi, Kusum, Ikra. अच्छा टेक्स्ट बुक तो खोल के देख लो ना कम से कम. Must be having textbook or something ना. क्या है बोलो? ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. रिमेंबर दिस all of you. Remember this. ये 2 capital T. ये 1 capital T, 1 small t. This is also 1 capital T, 1 small t, and ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? This into this will give you 2 small t. तो ये वाला प्लांट फिनोटाइप क्या होगा इसका? टॉल या डॉर्फ? What will this plant look like? फिनोटाइप क्या होगा इसका? टॉल या डॉर्फ? टॉल. गुड गुड. दिस इसका क्या होगा? टॉल या डॉर्फ? इसका भी क्या होगा? टॉल या डॉर्फ? टेल मी. हाइब्रिड कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन.
Okay, Ruchi is saying dwarf. What about others? Ruchi and others, if you have not. See, capital T or small t है. What is dominant? यहाँ पे capital is the dominant trait is tall. See, यहाँ पे dominant trait tall है और recessive trait dwarf है. तो हमेशा in presence of the recessive allele tall ही होगा. तो ये भी tall है. ये वाला भी प्लांट क्या होगा? टॉल होगा. हाँ, अभी इसमें क्या होगा ये बताओ. टू स्मॉल टी है, टू स्मॉल टी है लाइक दिस पेरेंट. तो ये क्या होगा? गुड. गुड, ये ड्वार्फ होगा, है ना. तो कितने टॉल प्लांट्स है? 3. ड्वार्फ कितने हैं? 1. तो phenotypic ratio of F2 generation in case of this monohybrid cross is 3:1. ठीक है. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है? फिनोटाइप एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है. बराबर है ना. 1 रेड, 2 पिंक, 1 white. तो what will be the phenotypic ratio? Same as genotypic ratio, 1:2:1 and genotypic ratio 1:2:1. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या थी? 3:1. अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा, वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा था. फाइन. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक व्हिच इज आस्क्ड इन एग्जाम. इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड द नेक्स्ट वन इज कोडोमिनेंस. ठीक है. तो कोडोमिनेंस में क्या है? ऑपोजिट ऑफ इनकम्प्लीट. कोडोमिनेंस में क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में व्हाट वाज हैपनिंग? पार्शियल एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट अलील, है ना. वो पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था. कोडोमिनेंस में क्या है? जो दोनों अलील है ना, अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे. सो अभी यहाँ पे 2 है. लेट्स ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ मैं, नॉट दिस वन. वीडियो में मैंने, रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने ये वाला भी एग्जांपल बताया है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में आपको वो भी मिलेगा. तो यहाँ पे जस्ट यू आर रिवाइजिंग, सो आई जस्ट टेक वन एग्जांपल. ठीक है. तो यू टेक 2 पेरेंट्स. फाइन. One is 2 capital R and the another is 2 capital W. क्या डिफरेंस है? ये वाला ले लो. हाँ, मतलब यहाँ पे समझ लो 2 कैपिटल R है. ठीक है. क्या डिफरेंस है? ये भी दोनों कैपिटल है, ये भी दोनों कैपिटल है. मतलब दोनों अपने आप में क्या है? डोमिनेंट है ना. दोनों अपने आप में क्या है? डोमिनेंट. इससे तो बुला रहे को डोमिनेंस. दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे. दोनों अलील्स, ये जो इन दिस केस इट इज ब्लैक कलर, इन दिस केस इट इज ब्राउन या रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर. ठीक है. रेडिश ब्राउन कलर. तो एक पेरेंट ऐसा है और दूसरा पेरेंट ऐसा है. ठीक है. सो द पेरेंट्स आर हैविंग डोमिनेंट अलील. तो F1 में सब कैसे कैटल आ रहे हैं? तो आपने एक सफेद काउ लिया, एक लाल काउ लिया, लाल काउ या ब्लैक काउ, व्हाटएवर. ठीक है. जब ब्लैक काउ लोगे तो 2 कैपिटल B लिखना. अगर रेड काउ ले रहे हो तो 2 कैपिटल R लिखना. टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दिया है, पर ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है. तो 2 पेरेंट्स ले लिए आपने. When you do F1 फर्स्ट जनरेशन में क्या दिखा? What is the outcome? You see some of the you see cattles, all cattles with black and white patches या फिर red and white patches. ऐसे है ना, बहुत सारे cattles है जिनको पैचेस होते हैं. व्हाइट भी कलर होता है, रेडिश कलर भी होता है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाटएवर इज द केस. ठीक है. तो F1 में ऐसा टाइप का काउ या कैटल दिखा. मींस व्हाट? दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना. हाँ या ना. दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करे. दैट इज व्हाई यू सी बोथ द कलर्स ऑन द कैटल. तो इससे आता है कोडोमिनेंस. फॉलोइंग. एंड व्हेन यू डू ऑल आर स्पॉटेड इन F1. अभी इसका आप वो कर लो, F2 जनरेशन कर लो. तो F2 में लेट्स से मैं ये वाला कंसीडर कर रही हूँ बिकॉज टेक्स्ट बुक में ये है इसलिए. तो यू डू all you get is BW या फिर RW. नाउ दिस यू टेक एंड यू डू क्रॉस. तो यहाँ पे एक अपने मेल का लिख लिया और यहाँ पे फीमेल का रिप्रेजेंट कर लिया. तो RW दोनों कैपिटल है बिकॉज दोनों डोमिनेंट है. तो दिस इनटू दिस विल गिव यू 2 कैपिटल R, दिस इनटू दिस विल गिव यू दिस एंड दिस. ठीक है. तो ये 4 मिले आपको, 4. अभी इसका फिनोटाइप बताओ. 2 कैपिटल R कौन सा कलर का काउ होगा? 2 कैपिटल R विच कलर काउ? रेड. वेरी गुड, रेड कलर का होगा. 1 कैपिटल R, 1 कैपिटल W, 1 कैपिटल R, 1 कैपिटल W. ये हाइब्रिड कंडीशन है. तो इसका कलर क्या होगा?
मिक्स मिक्स का नाम क्या है? ये है, ये करना है, ये लिखना है आपको, राउंड लिखोगे, ठीक है? RW, इसको राउंड बुलाते हैं. एंड व्हाट विल बी द कलर ऑफ द काउ इन दिस केस? प्योर व्हाइट. यस. तो व्हाट इज द फिनोटाइप? एक लाल है, दो राउंड है और एक व्हाइट है. तो फिनोटाइप रेशियो इसमें भी क्या है? 1:2:1. और जीनोटाइप भी वैसे है ना, ये 1 then this 2 and this 1. So genotypic and phenotypic ratio is the same in codominance and in incomplete dominance. Making sense? All of you? ये एग्जाम में पूछेंगे, ये आपको बिना देख के लिखने आना चाहिए सब. ऑब्वियसली ड्राइंग नहीं करनी, ड्राइंग नहीं पूछेंगे, बट ये सब लिखने आना चाहिए. फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो, ये बॉक्स बना के 4 खाचे बना के यू हैव टू राइट दिस. ठीक है? गो थ्रू दिस. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है तो डिफरेंस बहुत पूछते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के बीच में. 2 मार्क का या 3 मार्क का डिफरेंस पूछते हैं. फाइन. सो यहाँ पे इनकम्प्लीट में बोथ द जीन्स विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स व्हाट? पार्शियली इन F1 हाइब्रिड. ये कीवर्ड याद रखना है. कोडोमिनेंस में इक्वल एक्सप्रेशन. ठीक है? हाँ? इसमें फिनोटाइप एक जन का ज्यादा दिखकर आता है. जैसे पिंक है ना, तो ज्यादा लाल की तरफ होता है, रेड कलर फ्लावर की तरफ, तो एक का ज्यादा प्रोमिनेंट है. यहाँ पे दोनों का इक्वल है. तो रेड भी पैचेस उतने ही दिखेंगे जितना कि व्हाइट पैचेस दिखेंगे. ओके? यहाँ पे ब्लेंड होता है बिकॉज व्हाइट कलर एंड रेड कलर के गैमीट्स मिक्स होते अच्छे तरीके से. दैट इज हाउ पिंक कलर के फ्लावर्स दिखेंगे. यहाँ पे ब्लेंड इंटरमिक्सिंग नहीं होती है. दैट इज व्हाई यू सी सेपरेट पैचेस ऑफ. नहीं तो फिर वो व्हाइट और रेड मिक्स करके कुछ यू नो एकदम इन बिटवीन कलर हो सकता था कैटल का, बट वैसा हमें नेचुरली दिखाई नहीं देता है. तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग और ब्लेंडिंग of the two allele is not observed. यहाँ पे it is observed. Got it, all of you? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? All of you? ठीक है. अभी तक हम what were we discuss? So that was 2 examples of neo-Mendelian. This is another example which do not follow Mendel's का law. तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे मेंडल के अकॉर्डिंग और जनरल क्लासिकल जेनेटिक्स के हिसाब से कि अगर मैं एक कैपिटल T लिखूं, मतलब ये क्या कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, दैट इज ओनली टॉलनेस, है ना? सिर्फ हाइट का उसके पास व्हाट यू से, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी क्या है? हाइट कंट्रोल करना. हाँ या ना? सो इफ आई राइट 1 कैपिटल T और 2 कैपिटल T, ये जीन का काम क्या है? सिर्फ हाइट दिखाना, टॉल. फाइन. But there are certain genes which have more than one effect. दिख रहा है? Multiple traits. एक ही जीन है बट उनके काम कितने हैं, उनका इफेक्ट कितना दिखेगा? एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा भी बोल सकते हैं. तो in this case this phenomena is known as pleiotrophy. Okay? One gene more effect, one gene more effect, or one gene will affect multiple characters. ठीक है? जीन एक ही है बट वो मल्टीपल कैरेक्टर्स को अंजाम दे सकती है, लाइक दैट. ओके, मेकिंग सेंस? एक एग्जांपल जो है आपके टेक्स्ट आई मीन आपके सिलेबस में वो है, डिटेल में जो करना है इज आई थिंक फिनाइल कीटोनुरिया भी है क्या? हाँ. व्हाट इज द एग्जांपल? सिकल सेल एनीमिया है पहला. ठीक है? ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया? Is there anyone who does not know sickle cell anemia? मैंने रिकॉर्डिंग में भी दिया है, तो होपिंग आप लोग रिकॉर्डिंग देखकर आए हो. तो सबको पता है सिकल सेल एनीमिया. मैं एक लाइन में बता देती हूँ. बेसिकली जो शेप ऑफ द आरबीसीज है वो ऐसी हो जाती है, चांद जैसी. सिकल से शेप नॉर्मल कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए? सर्कुलर एंड राउंड. तो व्हाट विल हैपन इफ द आरबीसी बिकम्स दिस मून शेप्ड? व्हाट विल हैपन? What will happen? अच्छा, उसको लेके नहीं गए. What is the function of the RBC? To
carry oxygen to different part of the body, right? If this RBC which was circular in shape, अभी वो छोटा एकदम ऐसे चांद जैसा बन जाता है. So the function of the RBC to carry oxygen to different parts of the body will be reduced ना, उस पे effect आएगा ना, हाँ या ना? और because of the change in the shape, it might clog also. कहीं पे कोई आपके blood artery वाटरी में clog भी हो सकता है ना, गांठ बन सकती है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो बराबर से फ्लो नहीं हो पाएगा. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है व्हेन सिकल सेल एनीमिया होता है. इरेगुलर शेप्ड आरबीसीज बिकॉज ऑफ द अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्लॉग वेसल्स हो सकते हैं, आर्टरीज और वेन्स, पुअर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है. माइल्ड ऑक्सीजन डिप्राइवेशन हो सकता है. Okay, dehydrated and all these stuff can happen if a person who is suffering from sickle cell anemia. Fine. So this condition is basically genetic in nature. एक तो anemia सिर्फ anemia होता है, that is because of environmental factors, dietary habits, immunity की वजह से. और एक होता है sickle cell anemia which is genetic in nature. Basically जो आपका क्रोमोसोम, you have one number, chromosome number 1 till chromosome number 22 which are known as autosomes, right? तो वो it has all the genes for carrying out normal activities in your body. तो जो क्रोमोसोम नंबर 11 है ना, क्रोमोसोम नंबर 11, उस पे आपके पास, I mean on that chromosome you have the gene which makes hemoglobin. On this chromosome you have the gene which makes hemoglobin. तो नॉर्मल बंदे में उसका क्रोमोसोम 11 ठीक ठाक है, उसका जीन भी ठीक ठाक है, हीमोग्लोबिन बराबर से बना रहा है. हीमोग्लोबिन बनाने के लिए दो चेन चाहिए होते हैं, अल्फा चेन एंड बीटा चेन. सो बीटा चेन एंड अल्फा चेन, तो दोनों चेन नॉर्मल बनते हैं और फिर वो दोनों चेन आते हैं साथ में और हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाते हैं which is the main molecule, main entity of the which makes up the RBCs which carries oxygen. तो हीमोग्लोबिन फिल्ड आरबीसी आर राउंड एंड फ्लेक्सिबल. ये नॉर्मल कंडीशन है. ये समझा सबको नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है? ऑल ऑफ यू क्विकली जल्दी से एक्नॉलेज करो सो तो मैं सिकल सेल का रिवाइज करूं. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन गेट्स दिस जेनेटिक डिजीज? तो उसका क्या है ना, जो उसका क्रोमोसोमल नंबर 11 पे जो हीमोग्लोबिन जीन थी उसमें से कुछ गड़बड़, इधर म्यूटेशन और इट गेट्स ऑल्टर्ड. बेसिकली जीन्स है तो म्यूटेशन ही होता है, जो सीक्वेंस है, जो जीन है वो चेंज हो जाती है. तो उसमें है ना दो चेन है ना, मैंने बोली बीटा चेन एंड अल्फा चेन. ग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं बिकॉज इट्स अ प्रोटीन व्हिच इज गेटिंग फॉर्म. तो बीटा वाली में गड़बड़ आ जाती है, बीटा वाली बराबर से बन नहीं पाती है. ठीक है, अल्फा वाली बराबर बन रही है बट बीटा में कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो बराबर से बन नहीं पाती है. तो इस वजह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जैसा बनना चाहिए एंड आरबीसी जो सर्कुलर होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं हो पाती है. इट बिकम्स लाइक दिस, समथिंग, सम शेप गेट्स ऑल्टर्ड, ऐसा हो जाता है, स्टिफ एंड सिकल शेप. तो दिस इज द कंडीशन इन सिकल सेल डिजीज. एंड देन इसके वजह से कितने सारे सिम्टम्स होते हैं ना, कितने सारे ट्रेट्स अफेक्ट होते हैं. ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लेस हो जाती है, क्लॉग्ड ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, देन द हार्ट रेट एंड यू नो a person might also suffer from any mild attacks, oxygen deprivation like that. तो ये सारे multiple effect है because of this one gene. Understanding? So that is why we study and study this example under pleiotropy. Okay, that is gene 1, but उसका effect multiple organs पे हो रहा है, multiple चीज पे हो रहा है. What? Okay, so these are the two examples in actually one ही example है, दोनों example एक ही है जो मैंने picture डाला है in your textbook. Okay, so what is this example? I will just display one. तो क्या होगा अभी इसमें, हम क्या कौन से दो एग्जाम्पल ले रहे हैं? टू पेरेंट्स ले रहे हैं. Parent is one parent is
अच्छा, both the parents are HbA, HbS. Now what is HB? HB standing for hemoglobin molecule. A stands for, इसके ऊपर A, इसके सर पे A मतलब ये नॉर्मल अलील है और ये डिफेक्ट वाली अलील है. ठीक है. अच्छा, मैं 2-3 चीज लिख देती हूँ यहाँ पे. HbA, HbA. This is, let's say, person number 1. ये क्या है? This is a normal person. Normal. ये normal है. क्यों? Why this person is normal? Tell me quickly. ये person normal क्यों है? बोलो जल्दी. Because इसकी दोनों अलील क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रही है. ठीक है. तो चाहे आप ए से डिनोट, हाँ एग्जैक्टली ये ए लिखते हैं या फिर समटाइम्स आई थिंक आपके टेक्स्ट में शायद एन भी लिखा होगा. एन एन HbN, HbN, HbN. ठीक है. मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहे हैं दोनों अलील. दिस इज वन जीन. जीन के 2 पार्ट्स होते हैं ना, जैसे हम 2 कैपिटल T लिखते हैं बराबर, 2 स्मॉल t लिखते हैं, है ना. तो ये नॉर्मल है. ठीक है. दूसरा वाला एक HbA, या चलो मैं N लिखती हूँ. N एंड दिस इज S. और तीसरा बंदा लिखती हूँ, उसका कॉम्बिनेशन आई एम राइटिंग एज HbS एंड HbS. अब ये बताओ, एनी आइडिया इसको क्या बुलाएंगे, इसको क्या बुलाएंगे? अच्छा, वैसे तो आंसर है इस पे स्क्रीन पे. What will happen when one allele is normal, other is defective? इसको हम क्या बुलाएंगे? C for carrier. क्या बुलाएंगे इसको? कैरियर. ओके. कैरियर मीन्स व्हाट? इसका आधा अलील इज नॉर्मल और आधा डिफेक्टिव है. दूसरा वाला पार्टनर क्या है? डिफेक्टिव है. तो उसको सिकल सेल अनीमिया तो नहीं होगा, बट वो उसके पास वो डिफेक्टिव जीन है which can be passed on to his children, his or her children. ठीक है. तो मे बी माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, वेरी माइल्ड, बट वो कंपेंसेट हो जाते हैं बिकॉज नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी बन रहा है उसके बॉडी में. Is this making sense to all of you? Come on, tell me quickly. और तीसरे वाले बंदे को क्या है? उसकी दोनों अलील क्या है? हाँ, गुड. दोनों डिफेक्टिव है तो भाई इसको क्या हो जाएगा? सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा. इसको ये बीमारी हो जाएगी, अफेक्टेड. And chances of this type of person, this type of child surviving is very very less. Usually ये child, मतलब अगर बच्चे में ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया जैसे HbS from the father and HbS वाली allele from the mother, तो उसका सर्वाइवल का चांसेस क्या है? बहुत कम है. यूजुअली द चाइल्ड डाइज बिकॉज उसके दोनों हीमोग्लोबिन अलील, hemoglobin बनाने वाली allele is defective, and if hemoglobin is not made then RBC, all of them are sickle shape. So that's a basic thing which has gone defective. अगर ऐसा स्टेज है तो अनअफेक्टेड है, उसको बीमारी हुई नहीं, बट वो कैरियर है, उसके पास वो डिफेक्टिव जीन है which can be passed on to generation. Making sense? तो क्रॉस करोगे, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है, दोनों पेरेंट्स कैरियर है, देखो HbN एंड HbS, HbAS, HbAS, तो आप क्रॉसिंग करोगे ये वाली अलील को इसके साथ, ये वाली अलील को इसके साथ, देन ये वाली अलील को इसके साथ, एंड देन दिस विद दिस. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? दोनों AA आ गई तो मतलब ये नॉर्मल चाइल्ड पैदा हुआ है. AS normal and sickle cell, 50% normal allele, 50% defective allele. तो इसमें child को the offspring will not get the disease, but he or she will be carrier. अगर ये combination आ गया then the child might die. Fatal है. Clear? This is what happens in sickle cell anemia. Like this. Textbook में I think N use किया गया, तो you can use this.
this representation. This is also one of the very common question asked in board exam. They will ask you, they will just give you represent a cross between sickle cell carrier father and a normal mother or a sickle cell carrier mother. अभी है ना, चलो अभी do right now one example when one is carrier and one is normal. ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ करती हूँ, यहाँ करूँ तो आसानी आई, जस्ट हैव टू चेंज द लेटर्स. ठीक है, सो लेट्स से वी विल टेक दिस एज नॉर्मल. ये वाला पेरेंट नॉर्मल लेते, तो इसकी दोनों अलील क्या रहेगी, नॉर्मल, और ये वाला पेरेंट ऐसे ही रहेंगे. ठीक है, कम ऑन. तो इसका अलील ये हो जाएगा नॉर्मल. तो HBN HBN. लेट्स से फादर इज नॉर्मल, ये फादर है और ये मदर है. ठीक है, मदर इज कैरियर, मतलब उसका एक नॉर्मल अलील है और एक डिफेक्टिव अलील है. अभी जब F2 करेंगे तो क्या होगा, सॉरी F1 करेंगे तो क्या होगा, दिस इज हाउ वी विल राइट. सो HBN और HBN, इसको हम N कर देते हैं, एंड इसका तो ठीक ही है N और S. तो दिस इनटू दिस विल गिव यू HBN HBN, दिस इज राइट. This into this again will give you HBN and HBN. Now this into this will give you barabar N and S, and S into N. So S into N. So what will happen? What will happen? If one parent is carrier and the another is normal, what do you get? ये भी normal बच्चा, ये भी normal है. This is carrier and this is also carrier. So 50% normal and 50% carrier. है ना? 50% normal, 50% carrier. तो इस केस में there will be no child who will be affected. Who will be affected? है ना? Getting this? All of you. So in this case, because one parent, सिर्फ एक parent के completely normal होने से, एक gene normal होने से, the progeny will not have, any of the progeny will not have sickle cell anemia. When will the progeny might have anemia? When both the parents are carrier. ठीक है, तो इसमें 50% normal बच्चे and 50% carrier बच्चे. Okay, so different combinations they might give you, and then you have to cross it accordingly. Clear? Another example that was there in the recording was multiple allelism. Okay, multiple allelism basically the function is same, basically opposite of pleiotropy, more or less opposite of pleiotropy. Gene function is same, जैसे blood grouping. What is the function? Blood grouping. A blood group होना, B blood group होना, O blood group होना. But उसके genes एक से ज्यादा, दो से ज्यादा है. Alleles are more. Alleles are more. अभी for example tallness के लिए we have only 2 capital T, और dwarfness के लिए we have 2 small t, है ना? But इसके लिए you have 3 types. IA blood grouping के लिए IA, IB and I. अब तक तो हम सिर्फ 2 ही समझ रहे थे ना. टॉल के लिए एंड ड्वार्फ के लिए एक वेराइटी है कैपिटल टी, दूसरी वेराइटी है स्मॉल टी. इसके अलावा कोई वेराइटी है क्या? हाइट के लिए नो, है ना? ऑल ऑफ यू अग्री, ऑल ऑफ यू आर फॉलोइंग. बट जब हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो उसमें वेराइटी है, 2 से ज्यादा अलील की वेराइटी है, जैसे IA, IB एंड स्मॉल आई. एंड बाय जस्ट लुकिंग एट दिस यू नो IA मींस वो बंदे का ब्लड ग्रुप A होगा, IB ब्लड ग्रुप B, और सिर्फ छोटा आई है तो ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O. ठीक है, so this is what we call as multiple allele. The name itself is suggesting multiple allele, condition in which more than 2 alleles govern the same character. Character कौन से character की बात कर रहे हैं हम? Blood grouping. यहाँ पे कौन से character की बात कर रहे थे? Height. Only 2 possible height, either tall or either dwarf. यहाँ पे
ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है. अच्छा, इनके कॉम्बिनेशन से भी दूसरा और ब्लड ग्रुपिंग बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन प्लस रिसेस फैक्टर है कि नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है. तो इससे ये 3 एलील्स है, लेकिन 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं. ए बी ऑल्सो इज देयर एंड ओ इज ऑल्सो देयर. ठीक है, सो दिस इज मल्टीपल एलीलिज्म. Fine. So when both the alleles are IA, तो बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा. अगर एक IA है और एक IB है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB. AB ब्लड ग्रुप भी होता है ना. सिर्फ IA है, एक कैपिटल और स्मॉल आई है. इसका बताओ मुझे, चलो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये बंदे का? गुड. इसका ब्लड ग्रुप ए होगा बिकॉज ए इज द डोमिनेंट एलील. और इसका आई स्मॉल, मतलब ये वाला इज रिसेसिव. दिस AB ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप होगा बी. इसका भी ब्लड ग्रुप होगा बी. इसका ब्लड ग्रुप होगा ए. ब्लड ग्रुप बी. एंड व्हाट इज दिस? ओ ब्लड ग्रुप, है ना. तो ओ ब्लड ग्रुप कब होगा? जब 2 स्मॉल आई आएंगे साथ में, तब. क्लियर? So this is because of multiple alleles governing the same character, that is blood group. Okay. Another example in your textbook is wings of Drosophila. Wings of Drosophila. You just have to see as an example. इसको याद नहीं करना as a any or something like that, but ये पता होना चाहिए, concept पता होना चाहिए. अभी आप देखोगे V तो सेम है, लेकिन G में कितनी वैरायटी है? G प्लस, G NI, G NO, G ST, G. मतलब अगर G प्लस वाला एलील है तो वो फ्रूट फ्लाई, वो ड्रोसोफिला की, ये मक्खी की विंग्स क्या होगी? नॉर्मल. अगर ये वाला अलील है तो निक. निक मींस उसके विंग्स में कट होगा, कट कट टाइप. नॉच्ड मींस 2 विंग्स जुड़े होंगे, नॉच्ड एक जगह पे बीच में, ये बीच की बॉडी है और दोनों विंग्स यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, नॉच्ड. स्ट्रैप मींस ऐसे लाइंस होंगे विंग्स में, स्ट्रैप्ड, ऐसे स्ट्रैप, पतले पतले विंग्स होंगे. एंड वेस्टिजियल मींस नो विंग्स. वेस्टिजियल मींस नो विंग्स. So just by you see, कैरेक्टर क्या है? गिविंग विंग्स. कैरेक्टर विंग्स ही है, लेकिन उस कितने कितने सारे अलील्स है ना, अलग अलग अलील्स है, तो उससे क्या हो रहा है? फिनोटाइप बदल रही है. नॉर्मल विंग्स, निक विंग्स, नॉच्ड विंग्स, स्ट्रैप विंग्स, वेस्टिजियल, ऐसे. क्लियर? तो ये अनदर एग्जांपल वाज अबाउट ड्रोसोफिला, विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला अंडर मल्टीपल एलील्स. ठीक है, दैट्स ऑल. आई थिंक फिर क्रोमोसोमल थ्योरी थी, तो ये तो आई एम नॉट रिवाइजिंग, दिस इज मोर ऑफ थ्योरी. सो इफ स्टिल you have not gone through the video and you have not read the textbook, please read that. तो ये I am not revising, this is quite simple. ये आपने 10th में 9th में काफी पढ़ा है. What is chromosome, meiosis, mitosis, homologous chromosomes क्या है, heterologous क्या है. ठीक है. And this is something that you can go through, and if you have any problem you can ask me right now. Abhi. Let me just see इसके आगे क्या है. अच्छा, structure of chromosome, and then we are done. Then we will do the test now. Keeping the slide for few minutes, let's say 1 minute. Tell me if you have any difficulty in this, understanding this. Do you have any questions in this? Yes. Let me know. Give me a type something or put a thumbs up or something, so that I know that I have to move forward.
These are just certain terminologies that you need to know. Okay, कि monoploidy, diploidy, polyploidy क्या होगा? Humans are diploid in nature. Some animals might be polyploidy. Some animals might be monoploidy. ये डिजीज कंडीशन है. जब नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, कम या ज्यादा होता है, तो ये सब डिजीज कंडीशन है. ये हम लास्ट वीडियोस में देखेंगे. व्हेन द चैप्टर एंड्स, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स करेंगे, तब मोनोसोमी ट्राइसोमी करेंगे. जब आपके पूरे सेल में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर कम है, तो अ जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक you know, some I think टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम हो सकता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है बिकॉज ऑफ improper cell division and segregation of chromosome. So these conditions can happen. So it's just the terminologies for now that you need to remember. When the videos will be shared regarding these diseases, things will become more clear. ठीक है? अभी structure of chromosome, again I am not going into detail, keeping the slide for a minute so that you revise quickly and ask me if you have any problem, if you don't understand any word, or if you had any question from your recording when you were viewing the video and you had any question, so you will ask now. Any questions? Depending upon this location of centromere, these are all ये हमने 11th में किया था. Remember what is centromere, microtubules? These are nothing but protein. They are made up of protein, spindle fibers, and all these. These are structural proteins which help the chromosome to divide when the cell is undergoing division, cell division. तो ये दो पार्ट्स है क्रोमोसोम के, एक ये है, एक ये है. इसको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बुलाते हैं. जब हम खाली इसकी बात कर रहे हैं, जैसे खाली हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको क्रोमैटिड बोलेंगे. जब दोनों साथ में आ जाएंगे, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से बंध जाएंगे, तो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बुलाते हैं. ये मिडिल स्ट्रक्चर जो बनता है, इसको काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर बुलाते हैं. यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं when the chromosome is dividing, when the cell is undergoing either mitotic cell division or meiotic cell division. ठीक है? टिप्स को क्या बुलाते हैं? टीलोमियर बुलाते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रोमियर लोकलाइजेशन, ये जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पर है, तो उस हिसाब से 4 टाइप्स बनते हैं. मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. तो जब एकदम सेंटर में है तो हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम. सेंटर से a little away, either on this side or either on this side, then we will call submeta. If it is near the tip, the centromere is near the tip, then this type of chromosome is acrocentric. If it is at the tip, कुछ ऐसा दिखेगा हमारा क्रोमोसोम, then this is known as telocentric. Okay. And then you have the sex chromosome, which is X and Y. Okay, X is longer in shape, longer in size. Y is shorter in size. तो X के पास ज्यादा जीन्स होंगी बिकॉज वो बड़ा भी है लेंथ में. Y के पास क्या होगी? कम जीन्स होगी. Okay, X is longer, Y is shorter. X के पास ज्यादा जीन्स है. ज्यादा जीन्स मतलब उसके पास ज्यादा यूक्रोमैटिन है. ये एक्चुअली यू होगा, EU. Euchromatin. Zyada genes means more active genes, more active regions. This more active regions is known as euchromatin. And uska opposite, that is
लेस एक्टिव या इनएक्टिव, हेटेरोक्रोमैटिन। Y के पास क्या है, ज्यादा हेटेरोक्रोमैटिन है, मतलब इनएक्टिव जीन्स, इनएक्टिव जीन्स, तो उसके पास ज्यादा क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन, मतलब वहां के जीन ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, दे डोंट गो फ्रीक्वेंट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज हाउ वी कॉल देम एज इनएक्टिव। एक्टिव मींस वहां के जीन्स कॉन्स्टेंटली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। ओके, दैट्स द मेजर डिफरेंस। फाइन, the non-homologous region of X chromosome contains more genes and non-homologous regions of Y genes contains less gene. Homologous, non-homologous पता है ना आपको? Homologous means similar region, मतलब कुछ ऐसी जगह होगी, region, area on the X and on the Y जो similar होंगे, compatible होंगे, compatible और similar. I am not using the word identical. There's a difference. Identical मतलब एकदम डिक्टो, सेम जीन्स, नो, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी, थोड़ा बहुत कंपैटिबिलिटी, तो वो रीजन को हम बोलेंगे होमोलोगस। एंड द रिमेनिंग विच आर नॉट कंपैटिबल, नॉट मैचिंग, थोड़ा बहुत भी, उसको हम बोलेंगे नॉन होमोलोगस रीजन। तो एक्स के नॉन होमोलोगस में ज्यादा जीन्स है, वाई के नॉन होमोलोगस में थोड़े जीन्स है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑब्वियसली। ठीक है। And the genes which are present on the non-homologous region of Y, उसको हम होलैंड्रिक genes भी बुलाते हैं in case of Y, और X के लिए तो X-linked genes बोलेंगे। ये हम बाद में करेंगे examples। ये अभी अगर आप नई भी वीडियो आपने देखा है रिकॉर्डेड वीडियो, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, बट अभी मैं नहीं रिवाइज करूँ डिटेल में, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। क्लियर? So this was about X and Y chromosome. छोटा सा एक पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में, बट दिस इज आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स इन योर एग्जाम। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर ये जो वाला है ना, ये वाला जो अभी हमने किया, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। यू कैन ड्रॉ स्केच एंड यू कैन राइट द पॉइंटर्स ओवर हियर। या तो डायग्राम बनाने आता है, ये डायग्राम बनाने आता है, या फिर दे माइट आस्क यू 2 मार्क के लिए, दे माइट आस्क यू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो आप ये स्केच बना के एंड यू विल एक्सप्लेन 2 लाइंस ऑन ईच, तो 2 मार्क के लिए आ सकता है। You know, when the centromere is at the center, then that type of chromosome is metacentric. When it is away, little away from the center, submeta. When it is near the tip, the centromere is near the tips or near the telomeres, an acrocentric type of chromosome. And when the centromere is at the tip, तो ये question भी बहुत ही commonly पूछे जाते हैं। ये structure, types and this X and Y structure या फिर difference, या तो सिर्फ एक्स पे पूछेंगे 2 मार्क के लिए, या तो सिर्फ वाई पे, या फिर ज्यादातर डिफरेंस बिटवीन आता है एक्स और वाई के बीच में। क्लियर? ये मैंने नेक्स्ट वीक के लिए दिया है आपको, तो प्लीज करके आना। मैं इस पे हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आई विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन आंसर्स। ये मैंने नेक्स्ट वीक का, आई मीन आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर दीज रिकॉर्डिंग्स विद यू। लिंकेज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, interesting, but at the same time it is important and might be difficult at the first time. X and Y, autosomal inheritance, widow's peak and phenylketonuria, यहाँ तक मैंने शेयर किया है ये वीक के लिए। ठीक है, चलो। Now what we'll do is quickly we will solve the questions. We will do the test now. We will do the questions also now. और एक पेंडिंग है, पिछले बार का एक पेंडिंग है ना डिस्कस करने के लिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी का कर लेते हैं because it is fresh now. So it will help you. Come on the first link, everyone on the first link, and then first discuss करने के बाद we'll do second.